Hello everyone. Till last lecture, we have been completed chapter number 1, that was Fundamentals of Traffic Engineering. In today's session, we are going to start chapter number 2, that is Traffic Studies. Before starting this chapter, I would like to recall session 1. In chapter number 1, we have been learned what is a traffic engineering, its definition, objects and scope, different characteristics like road user characteristics, vehicular characteristics and road characteristics. In road user characteristics, we have been studied in detail like physical, mental, and emotional factors. In vehicular characteristics, we studied how the vehicles are being classified depending upon width, length, height, weight, speed, efficiency of brakes, etc. Further, we studied road characteristics like gradient, which is a rate of rise and fall along the alignment of the roadway, curve of a roadway, the phenomenon which is provided at the turning point on the road, design speed, the maximum allowable speed limit which is to be provided on the road, friction between road and tire surface which is being allowable limit by IRC code, and the last point was the reaction time, that factors affecting reaction time and PIEV theory, how the persons can react according to the situation, and the PIEV theory. What was the PIEV theory? Perception, intellection, emotion, and volition. Right. So this was the PIEV theory. These all contents are related to chapter number 1. In today's session, we will see what are the contents of chapter number 2 and further in detail. This chapter carries 12 marks in the examination. The points are as follows, like traffic studies, its type, purpose, and information required for traffic studies. Before this studying this subject, you already have been studied highway engineering. In that, you studied classification of roads in all over the India and in an urban city. Then their maintenance, their construction activities, their requirement of materials, tests should be performed on the materials, etc. Means up to that, your construction and designing activity is completed. Further, you need to plan for the traffic studies, like how the traffic is to be get planned on these road surfaces with their classified contents. ठीक है, जैसे कि आपको अभी रोड बन गए हैं आपकी, इन रोड के ऊपर आपको डेली ट्रैफिक को मैनेज करना है। इस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, किस किस तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले है ट्रैफिक स्टडीज, जैसे कि आपके घर के आसपास, कॉलेज के आसपास, आपके एरियाज के आसपास किस तरीके की ट्रैफिक वॉल्यूम है, जैसे कि हेवी ट्रैफिक है, मीडियम ट्रैफिक है, लाइट ट्रैफिक है, या दिन में सिर्फ 1-2 व्हीकल्स ही आते हैं। सेकेंड, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब इस वॉल्यूम को हम लोग मेजर करेंगे कि दिन में पर घंटे के हिसाब से कितनी ट्रैफिक वहां से गुजरती है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। उसकी हम लोग इसमें डेफिनेशन देखेंगे, पर्पस देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट डेटा। अब इस ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने की कौन सी मेथड्स है, जिसमें कि देखेंगे हम लोग मैनुअल, ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स एंड मूविंग कार मेथड्स। इन 3 मेथड्स के जरिए हम लोग डेटा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट डेटा। उसका अब डेटा मिलने के बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा और एनालिसिस क्या करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हो रहेगा नेसेसिटी ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी एंड इट्स मेथड्स। अब ये डेटा मिलने के बाद आपको एक पता चलेगा कि कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, और दूसरी बात ये पता चलेगी कि कितने नेटवर्क्स बनते हैं या कितने पाथ्स, डिफरेंट पाथ्स बनते हैं। ठीक है, उससे से पता चलेगा कि कौन से पॉइंट के पास मैक्सिमम ट्रैफिक रहती है या कौन से पॉइंट के पास से मैक्सिमम रूट्स गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड स्टडीज। व्हीकल की स्पीड की स्टडीज अगर करनी रहेगी तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड्स रहेंगे, जिसमें है कि स्पॉट स्टडीज एंड इस प्रेजेंटेशन। स्पॉट स्टडी का मीनिंग होता है एट द पॉइंट
हाउ मच इज द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जैसे कि आप रास्ते पे खड़े हो, आपके पास से कोई व्हीकल गुजरता है एंड यू नीड टू नो द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, सो यू कैन मेजर विद द using particular equipments and what it represents, whether that vehicle traveling within speed limit or over speed limit. That studies will be included in 2.6 speed studies. Next we will study need and method of parking studies. After all these traffic studies, we will see on-road parking methods and off-road parking methods, what's their needs and which are the different methods. So here we will start at point number 1, that is traffic study. What is traffic studies? It is a thorough study and analysis of a data needed for transportation system. Right? Thorough study मतलब detail study, कि हम लोग ट्रैफिक की डिटेल स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, फॉर एफिशिएंट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए. द प्रोसेस फॉलोड एज, इसकी जो प्रोसेस रहेगी विच विल बी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द ट्रैफिक system. Secondary, we will define the problem. Tertiary, we will collect the data. And lastly, we will analyze and give suggestions or improvement points. ठीक है, फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे कि ट्रैफिक स्टडीज की प्रोसेस क्या रहेगी. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, रोड का विड्थ सफिशिएंट नहीं होता है, रोड की कंडीशन खराब हो गई है, या सिग्नल सिस्टम्स नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, रूट्स आपको दिखते नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है, राइट, कोई किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की हुई है, या उस चौक के बारे में कोई भी जैसे कि वहाँ पे चौक का नाम होता है या वेज के नाम रहते हैं, गोइंग टूवर्ड्स दिस वे, गोइंग टूवर्ड दैट वे, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. So that is creating problem in transportation system. So first of all we will identify that problem. फिर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, या वहां पे किसी भी तरीके की सिग्नल सिस्टम नहीं है, कोई भी मार्किंग्स नहीं है, कोई भी साइन बोर्ड्स नहीं है, एक्सेट्रा. So in this second stage we will define the problem in detail. Thirdly, accordingly we collect the data. राइट, अगर आपके साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो पूरे रोड का सर्वे करेंगे, हर एक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फोटोज लेंगे, फोटोज खुद की नहीं रोड की, कि यहाँ पर साइन होना चाहिए, यहाँ पे मार्किंग होनी चाहिए, और उसका हम लोग फिर आगे प्रपोजल सबमिट करेंगे, और वहां पे हम लोग रोड के ऊपर मार्किंग्स प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे रोड साइन चाहिए, यहाँ पे मार्किंग नहीं है, यहाँ पे डिवाइडर की पोजीशन खराब है, एक्सेट्रा. ठीक है, अगर वहां पे ट्रैफिक का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, कंजेस्टेड हो जा रही है ट्रैफिक, कंटिन्यूअस जाम सिचुएशन होती है, तो वहां पे हम लोग आवर पीक आवर्स जो होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग पीक आवर्स रहते हैं, इवनिंग पीक आवर्स रहते हैं. अब ये पीक आवर्स क्या होते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पर आपके व्हीकल्स या आपके रोड के ऊपर ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, जैसे 1000 व्हीकल्स वहां से गुजरेंगे, राइट. इन द मॉर्निंग देयर विल बी अ सिचुएशन लाइकवाइज. उस सिचुएशंस में हम लोग वन बाय वन व्हीकल्स काउंट करेंगे. एट द एंड वी विल गेट द व्हीकल डेटा एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रपोज दैट width of the pavement should be get increased, or sub road, subway should be get started or implemented over that location. And lastly, we will submit the analysis accordingly. So the studies are performed to identify the problem, current situation, and provide solution after the systematic analysis. This is a traffic study. Okay, if a definition asks, you can write this also, and you can give the process that we have been studied earlier. In traffic survey, traffic data called as census. अब इसमें हम जितना भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसे कहा जाएगा census. Is collected to analyze traffic characteristics. ठीक है, अब तक हम लोगों ने रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, रोड यूजर्स की देखी, व्हीकल्स की देखी. अब हमें जो ये ट्रैफिक मूव होती है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका पैटर्न क्या है, फ्लो क्या है, कौन से टाइम पे मैक्सिमम रहती है, कौन से टाइम पे मिनिमम रहती है, एक्सेट्रा. तो इसके लिए जो भी हम लोग सेकंड इसमें डेटा कलेक्ट करेंगे
उसे कहा जाएगा सेंसस. It may be in the form of count of the vehicles. It may be in the form of absence of road signs, absence of road markings, absence of divider, absence of any sign that manage or manipulate the traffic. Okay, so that is called as a census, which is a data collected, traffic data collected. Nextly, we will start types of traffic studies. कौन से तरीके के types होते हैं? इसमें सबसे पहला है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ठीक है, कितनी व्हीकल्स आपकी जाती है रोड के ऊपर से, मैक्सिमम कौन सा टाइम में मैक्सिमम व्हीकल्स जाती है, कौन से टाइम में व्हीकल्स का जो फ्लो है वो कम हो जाता है. वॉल्यूम मेजर करना मतलब किसी भी चीज का आप क्या करते हो, वॉल्यूम मेजर करते हो, राइट. जैसे कि आप शॉप से कुछ खरीदते हो 1 kg 2 kg 3 kg, लाइक इट वाज अ वॉल्यूम और अ kg, दैट मच अमाउंट यू आर or that much quantity of product you are buying. In this, we will count vehicles. Number of vehicles will give you the volume of traffic study. ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वहां पे ड्यूरिंग पीक आवर, ड्यूरिंग नॉन पीक आवर हम लोग खड़े होते हैं मैन्युअली, अगर मैनुअल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो, और 1 by 1 व्हीकल हम लोग काउंट करते हैं. ठीक है, और उसपे से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पूरा दिन भर नहीं, पर्टिकुलर टाइम के लिए, जस्ट लाइक फॉर 1 hour 2 hours, that will give you the idea or the lump sum idea of the traffic volume in a peak hours, in a non peak hours. सेकेंड मेथड होता है आपका स्पीड स्टडीज. ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन गो फॉर द स्पीड स्टडीज, जिसमें है स्पॉट स्पीड, स्पीड एंड डिले स्टडी. स्पॉट स्पीड होती है कि एट अ टाइम उस व्हीकल की स्पीड कितनी थी. स्पीड एंड डिले स्टडी मीन्स जैसे कि आपको घर से कॉलेज पहुंचने में अगर देर होती है, राइट, तो ये जो रहेगा डिले स्टडी में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि इफ अ ट्रैवलिंग ड्यूरेशन इज 15 minutes एंड एनी व्हीकल इज रिक्वायरिंग 20 minutes, so why 5 minutes are extra is required for that kind of vehicle. Okay, and this was done by the origin and destination study that we will elaborate in the further. Next method is origin and destination. Like I say, for this delay study is depend on this data, origin and destination. origin मतलब जहाँ से आप निकल रहे हो, जैसे कि आप घर से निकल रहे हो, डेस्टिनेशन कॉलेज पहुंच रहे हो, क्लासेस को जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, मॉल्स जा रहे हो, एक्सेट्रा. सो जहाँ से आप ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट करते हो दैट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिन, और जहाँ आप जाके रुकते हो दैट इज कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन. एंड दैट विल डिफाइन कि कितने पाथ अराउंड द सिटी बनते हैं, सिटी में कितने नेटवर्क्स बनते हैं, राइट. नेक्स्ट विल स्टडी ऑफ ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये फ्लो अब कैसा है, हेवी फ्लो है, नॉन हेवी है, या इसके पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट क्या क्या पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट विल स्टडी ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी. कैपेसिटी मतलब रोड की कितनी कैपेसिटी है कि कितने वॉल्यूम का ट्रैफिक उसके ऊपर अलाउएबल रहेगा, और अगर एक्सेस ट्रैफिक हो जाएगा तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे. एंड लास्ट वाज पार्किंग स्टडी. दिस पार्किंग स्टडी इज अ नीड नाउअडेज, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो हम लोग व्हीकल्स रोड के ऊपर पार्क कर देते हैं. देयर आर फ्यू प्लेसेस ओनली वेयर अ प्रॉपर पार्किंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड. लाइक अगर हम लोग गुलमंडी एरिया ले लेंगे तो सिर्फ सेंट्रल सेक्शंस में पार्किंग की फैसिलिटी है, वो भी लिमिटेड है. अगर व्हीकल्स एक्सेस हो जाते हैं तो आपको रोड पे पार्क करने पड़ते हैं. उसके लिए भी अगर अभी ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ रहा है तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने क्या प्रोविजंस किए हैं, अल्टरनेट डे पार्किंग रहेगा. फर्स्ट डे लेफ्ट साइड, सेकंड डे राइट साइड. सो लाइकवाइज दे आर शिफ्टिंग देयर पार्किंग मोड्स. सो ऐसे पार्किंग प्रॉब्लम्स डे बाय डे क्रिएट हो रहे हैं. ये तो हो गया नॉर्मल सिटीज में. अगर कोई डेवलप्ड सिटी है या मेट्रो सिटीज है तो वहां पर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो likewise we will do which suggestions can be get implemented, how the parking is to be get planned while you are designing a roads, right. रोड के डिजाइनिंग के साथ साथ आप उसके पार्किंग पैरामीटर्स भी कंसिडर करेंगे तो इजी जाएगा फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन. ठीक है, सी हियर कितना वॉल्यूम है आपका ट्रैफिक का दैट यू कैन मेजर. कैन सी इन द इमेज this is a condition of expressways nowadays. So for smooth conduction of
traveling by each vehicle, we need to provide a proper traffic system, and for that we need to study a traffic studies. Further, we will see purpose of traffic study. Why we need to study the traffic flow. First of all, to decide the geometric design features and traffic control for safe and efficient traffic movements. Right? In highway engineering, there was a chapter number 2, design geometric design features or geometric design of a road or highway. In that, each and every component was being studied in detail with their IRC specifications. So, for this designing purpose, you should know, first of all, for how much volume of traffic is being utilized that kind of road. For this purpose, you need to do traffic study and also traffic control to manage such kind of traffic, which system is to be get implemented for safe and efficient traffic movement. That is the need of traffic study. The traffic volume study is performed to find out number of vehicles crossing a section of a road per unit time at any selected period. ठीक है? You should know first of all how much vehicle are crossing at a section of a road per unit time. Per unit time का meaning होता है कि for example 1 घंटे में एक intersectional point से कितने vehicles पास हुए, जो कि हमें देता है पूरे 24 आवर्स में कितने व्हीकल्स, टोटल कितने व्हीकल्स उस रोड के ऊपर से पास हुए, जिस पे से हम लोग डिसाइड करेंगे whether to provide a remedial measures or the improvements in current situation, in current parameter of the road or not. Next, the speed study is performed to know the actual speed of the vehicles over a particular route. जैसे कि हम लोग रास्तों के ऊपर, रोड्स के ऊपर, हाईवेज के अलॉन्ग स्पीड लिमिट मेंशन करते हैं. ठीक है? तो व्हीकल्स वो स्पीड लिमिट पास फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म स्पीड स्टडी. अब ये स्पीड स्टडी आप अर्बन एरियाज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर हाईवेज के दौरान भी आप चेक कर सकते हैं. आप लोगों ने हाईवे के ऊपर कभी कभी देखा होगा कि कंटेनर्स को या ट्रक्स को पकड़ा जाता है. एक तो पैरामीटर ये होता है कि वो ओवरलोडेड होते हैं, दूसरा पैरामीटर ये होता है कि दे आर रनिंग out of the speed limit mentioned on that particular route. For that, you need to perform speed study. Origin and destination, the short form of it is O&D. Studies are done to plan the road networks and other facilities for vehicular traffic. Right? जैसे कि मैंने कहा origin and destination, मतलब आप एक लोकेशन से पास होते हो, एक लोकेशन तक रीच होते हो. That is origin and destination. तो इसमें क्या पता चलता है कि along the city कितने नेटवर्क्स फॉर्म हो रहे हैं. राइट? अब ये जो है ये परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस या फिर लोकेटर्स, जो आपका गूगल मैप के थ्रू जितने भी व्हीकल्स में ये एक्टिवेट होता है उतने रूट्स आपके प्रेडिक्ट हो जाते हैं, रीड आउट हो जाते हैं, और इन सारे रूट से बनता है आपका नेटवर्क जो कि सिटी में फॉलो होता है. और इस नेटवर्क के ऊपर से हम लोग पता करते हैं कि कौन से पॉइंट्स के आसपास मैक्सिमम जो आपका क्रिटिकल नेटवर्क पाथ बनेगा. तो वहां पे हम लोग फिर जाके ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करते हैं एंड वहां पे रोड पेमेंट की विड्थ इंक्रीज की जाती है या अदर बाईपास दिया जाता है ताकि वहां के ट्रैफिक को फ्लो जो है जाम कंडीशन में ना हो, वो स्मूथ एंड सेफ कंडक्शन हो. Next, the traffic capacity studies are performed to know the ability of the roadway so as to accommodate traffic volume. Right? We should know how much capacity is there for a roadway, means how much vehicle can pass, and if it goes beyond that limit, the jam situation will be there, or maybe accidental situation will be there. And the last is to carry out parking studies and evaluate the facilities. For all these purposes, we need traffic study or a basic traffic data that will give you all these features, all these outcomes. Okay? So again,
I will revise these. To decide the geometric design features and traffic control for safe and efficient traffic movements, जिसमें हम geometric design कर पाएंगे हर एक पैरामीटर को और regarding traffic control system place कर पाएंगे. To study or to perform, find out the number of vehicles crossing a section of the road per unit time. कितने vehicle एक घंटे में एक सेक्शन से गुजरते हैं, जिससे पता चलेगा डेली कितने व्हीकल्स गुजरते हैं. स्पीड स्टडी परफॉर्म टू नो एक्चुअल स्पीड ऑफ द व्हीकल्स की कितने स्पीड से गुजर रहे हैं. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी हेल्प यू टू नो रोड नेटवर्क्स दैट आर फॉर्म्ड and other facilities that is to be get implemented or get improved. Traffic capacity to know the ability of a roadway so as to accommodate the traffic volume. And last, to carry out the parking studies and evaluate the facilities. These are the purposes. In the examination, question will be asked for 4 marks on this. You can write any 4 points out of this. Next we will study which information is required for traffic studies. अब ठीक है, ट्रैफिक स्टडीज क्या होती है, कौन से मेथड्स है और उससे उसका आपका पर्पस क्या है, ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया. अब आपको देखना है कि इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, क्या बेसिक डेटा होना जरूरी है, जिसमें के फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉलोइंग आर द ट्रैफिक सर्वे मेथड्स ऑफ ट्रैफिक स्टडीज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी, जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रैफिक स्टडीज और गिव द पर्पस ऑफ ट्रैफिक स्टडीज, तो कभी भी ये सेंटेंस से स्टार्ट करना कि फॉलोइंग आर द पॉइंट्स दैट विल एलैबोरेट द ट्रैफिक स्टडीज और द मेथड्स ऑफ ट्रैफिक स्टडीज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. कभी भी ये सेंटेंस से शुरुआत करना, so that will give you or enrich impact of your answers to the paper checker. So the first point is traffic survey related to the road users consists of survey of parking, pedestrian, origin and destination and driver attitudes and capabilities. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हो गए, but all these are related to the road user. road user characteristics देखेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी किया था. रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, परमानेंट, टेम्पररी. परमानेंट में क्या क्या रहेंगी, फिजिकल, मेंटल एक्सेट्रा, एंड टेम्पररी में ही मे बी अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट एक्सेट्रा, राइट. सो जिसमें के और सबसे ज्यादा क्या जरूरी है आपको, पार्किंग, वेदर द पार्किंग सिस्टम इज ऑन रोड, ऑफ रोड और नियर एनी ओपन स्पेस. पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो कितने गुजर रहे हैं उस रोड के ऊपर से, उनके लिए क्या कोई फुटपाथ प्रोवाइड किया है या ऑन पेवमेंट ही वो चलते हैं रोड के साइड से, विच इज क्वाइट अ डेंजरस, राइट. देयर शुड बी ऑलवेज अ प्रोविजन ऑफ फुटपाथ फॉर दिस पेडेस्ट्रियंस. पेडेस्ट्रियन का मीनिंग होता है पैदल चलने वाले लोग. देन क्या नेटवर्क फॉर्म हुआ है, ये आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है. वो आपको वो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे करने के बाद पता चलेगा. एंड ड्राइवर का एटीट्यूड, ठीक है. अभी जैसे सिटीज में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनका एटीट्यूड अलग रहता है, उनकी कैपेबिलिटीज अलग रहती है. जो लोग हाईवेज के ऊपर चलाते हैं, जो लोग सिटीज क्रॉस करते हैं बाय यूजिंग देयर ओन व्हीकल, उनकी कैपेबिलिटी और एटीट्यूड अलग रहता है, ठीक है. उस हिसाब से एक आधा सर्वे आपको परफॉर्म करके पता चलेगा कि ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर्स गुजर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है. नेक्स्ट, ट्रैफिक सर्वे रिलेटेड टू द रोड. रोड यूजर हो गया, उसके बाद रोड का. अब रोड में क्या क्या देखना जरूरी है, सर्वे ऑफ द अर्बन एंड रूरल रोड्स, राइट. अर्बन में कौन से तरीके के रोड्स रहते हैं, हुआ है आपको ये, एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ. आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर, लोकल, ये हो गए रोड आपके अर्बन एरियाज के. अब रूरल में कौन से रहेगा आपका, एमडीआर, ओडीआर और वीआर. मोस्टली वीआर ही रहेगा, विलेज रोड, बट नियरर भी आपका ओडीआर एमडीआर आ सकता है. उसकी कॉस्ट और उसके उस रोड के ऊपर कौन से इंटरसेक्शंस है एंड क्या क्या ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम्स प्रोवाइड की गई है. ओके, ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम्स मतलब
क्या वहां पे सिग्नल्स है? आइसलैंड प्रोवाइड किए हुए हैं। आइसलैंड मतलब जैसे आपका शिवाजी महाराज का पुतला है या था क्रांति चौक पे, राइट? तो वहां पे अभी वो क्या कर रहे हैं, उसकी हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या किया है, शिफ्ट किया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पे चालू है। तो वहां पे क्या फिनोमिना है, आपको अगर आप समझो अमरप्रीत सिग्नल से जा रहे हो और आपको मोना नागी की तरफ टर्न लेना है, यू नीड टू टर्न राइट साइड। तो वहां पे आप हाफ सर्कल मेंटेन करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो वो जो भी वहां पे आपका टाइम गुजरता है, दैट हेल्प्स टू मैनेज द ट्रैफिक ऑफ अदर लेन, राइट? एक सिग्नल छूटता है, दूसरे 2 सिग्नल्स वेट करते हैं। तो वो जो भी फिनोमिना है, दैट इज योर आइसलैंड। तो क्या ऐसे आइसलैंड प्रोवाइडेड है या कोई और सिस्टम वहां पे इम्प्लीमेंटेड है टू मैनेज द ट्रैफिक फ्लो? आईटी पार्क्स में कभी कभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहां पर एक ट्रायंगुलर पोर्शंस क्रिएटेड रहते हैं जिसमें गार्डनरी वो कर देते हैं, राइट? तो वो ट्रायंगुलर पोर्शंस क्या करते हैं, बिगर वहां के इंटरनल जो रोड्स है उन्हें अगेन चैनलाइज करते हैं। तो ये भी एक हो गया आपकी ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट क्या लगेगा, ट्रैफिक सर्वे रिलेटेड टू द व्हीकल कंसिस्ट ऑफ सर्वे ऑफ फ्लो, स्पीड, स्पेसिंग, पार्किंग साइज, वेट एंड पॉपुलेशन। ये क्या हो गया, पहला क्या था, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द रोड यूजर्स का आपको सर्वे चाहिए या बेसिक डेटा रिक्वायर्ड होना जरूरी है। देन है अकॉर्डिंग टू द रोड, यू शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रोड्स। नेक्स्ट फर्दर यू शुड नो द व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? जिसमें कि किस तरीके के व्हीकल्स उस पे से गुजर रहे हैं, उनकी क्या स्पेसिंग मेंटेन होती है, क्या स्पीड लिमिट मेंशन्ड है, क्या वेट रहेगा, एंड अराउंड एरिया पॉपुलेशन कितना है। Next, you should know traffic survey related to the accidents consist of the survey of accident statistics, accident cost and accident location studies. ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें कितना आपका लॉस होता है, इसका पूरा बेसिक डिटेल स्टडी। नेक्स्ट, यू शुड रिक्वायर ट्रैफिक सर्वे रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, includes survey of land use and public utilities. Okay, regarding environmental means कि land कितना है, complete land width कितनी है। अब land width and road width is a quite different thing, ठीक है? Imagine there is a carriageway, मतलब जितना आपको bituminous road दिखता है जिसके ऊपर से vehicles गुजरते हैं, उसके बाद आता है shoulder portion, उसके बाद आता है side drains, अगेन उसके बाद हम लोग 3 to 5 मीटर का स्पैन ओपन छोड़ते हैं, ठीक है? अब ये 3 to 5 मीटर के ओपन स्पैन से लेके फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, दैट टोटल विड्थ इज योर लाइन विड्थ, ओके? और ये जो विड्थ हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ओके? सो फॉर दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, लैंड यूज एंड पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज में क्या आता है कि नियरर कोई टॉयलेट ब्लॉक्स प्रोवाइडेड है, कोई बस स्टैंड है, कोई आपके जो हम लोग बेंचेस प्रोवाइड करते हैं फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, दैट काइंड ऑफ फिनोमिना is being provided or not. Next was, all above methods are more useful for the pavement design, planning of road network, geometrical design and traffic regulation and control, right? सारे पॉइंट्स जो है आपको किस चीज में हेल्प करेंगे, पेवमेंट का डिजाइन में। पेवमेंट मतलब रोड, जो फाइनलाइज रोड सरफेस रहेगा उसको हम कहेंगे पेवमेंट। अब ये पेवमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं, आपको मैंने रिकॉल करवाया था, फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फेल्यूर ऑफ द पेवमेंट। नेक्स्ट है, रोड का नेटवर्क प्लान करने में हेल्प होगी, ज्योमेट्रिक डिजाइन में हेल्प होगी और ट्रैफिक को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने में भी हेल्प होगी, ठीक है? तो यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे इस लेक्चर को। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।